Students, welcome to PKS coaching classes. Myself, Praveen Kumar Sharma, having a 30-year experience in teaching. I'm expert in mathematics and science. So I welcome you all for our PKS coaching classes. So today we are starting with chapter 10 of class 10th, that is light, reflection. You know well what is light? So it is the medium that helps us to see the things around us. So students, you know well that we are able to view the things during the daytime because of the sunlight. Sunlight is reaching to all the objects and we are able to view them, or wherever light is there, we are able to view the things. But in dark, we are not able to view the things. So why we are not able to view the things in dark? We are not able to view the things in dark because the light that comes from other direction when falls on the objects, and these objects when reflect this light, and this reflected light when reaches to our eyes, then we are able to view the things. That's why it is called as the medium that helps to see the things around us. So directly or indirectly, the light should reach to our eyes. Then only we are able to view the things. So when the light ray is reflected from the things on this fall, they reaches to our eyes and we are able to view the things. मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों के ऊपर पहुंचती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन हमको चीज़ें दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो हियर आई वुड लाइक टू tell you that how many type of reflection of light is there. There are two types of reflection of light is there. One is regular reflection and another is irregular reflection. Irregular reflection is also called as diffuse reflection. Regular reflection means when a ray of light or rays of light falls on a smooth surface, they are reflected back. So if the ray of light which are falling on a reflected surface, they are parallel to each other after reflection, they remains parallel to each other. This type of reflection is called as regular reflection. And in case when the incident light rays falls on a irregular surface and after reflection the incident rays are parallel to each other, but when they get reflect, जब ये reflect होती हैं तो it is not necessary कि all the reflected rays are parallel to each other. So this is the basic difference between regular reflection and irregular reflection. जो regular reflection है वो smooth surfaces से होता है और जो irregular reflection है वो uneven surfaces से या rough surfaces से होता है. In class 8th we have learned, आपने पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्शन है ये क्लास 8 में शुरू हो गया था. क्लास 8 में आपने पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, और वहाँ आपने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस और इरेगुलर सरफेसेस.
उसके बाद आपने जो पढ़ा था वो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन in case of plane mirror. There are two laws of reflection. Before going to understand these two laws, we should try to understand this is the line that represents a plane mirror, and the ray that is incident on this plane mirror is called as incident ray, and this is the point of incidence of this ray. If we draw a line that is perpendicular to the mirror, this is called as normal, and after striking this reflecting surface, the ray goes back and it is known as reflected रे. तो यहां पे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स अस, ये हमें बता रहा है कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, एंड द एंगल दैट इज फॉर्म between reflected ray and the normal is called as angle of reflection. With the help of these, we can understand these two laws of reflection. First law is that angle of incidence is always equals to angle of reflection. That can be represented in this way: angle I equals to angle R. Second law of reflection is that incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, of this incident ray, normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie at the same point. This is the common point for incident ray, normal and reflected ray. All these three lines lie on the same plane on the reflected surface. Here we can say it is the mirror. So two laws of mirror are there, two laws of reflection are there. Angle of incidence is equals to angle of reflection. The incident ray normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie at the same plane on the रिफ्लेक्टेड सरफेस. तो जो इंसिडेंट रे है, अगर पहले लो को हम समझे, इंसिडेंट रे है एक नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो इट गोज बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में ये वापस चली जाती है. इन तीनों रेस को लेकर दो लॉ बनते हैं जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. इसमें पहला लॉ जो आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो वाला एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है. ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. दूसरा लॉ हमें बताता है कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है, अगर उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, एंड जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं.
समटाइम व्हाट हैपन्स कि हमारे दिमाग में ये आता है कि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, उसकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे पेरियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जो भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है इरेगुलर सरफेस की वजह से, वहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो होते हैं। इन द सिमिलर वे इन क्लास 8th हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो वो वहां पर हमने पढ़ा था कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड था डिस्टेंस ऑफ इमेज behind the mirror is equal to the distance of object in front of the mirror. The image form is virtual and erect. And the fourth is that it shows lateral inversion. सब लोग जानते होंगे लेटरल इन्वर्जन के बारे में। लेटरल इन्वर्जन मीन्स जो अगर हम अपनी इमेज को मिरर में देखते हैं तो अवर राइट अपीयर्स द लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट ऑफ द इमेज। और इस यूनिक प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है जब एम्बुलेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने का एक पर्पज़ यही होता है कि अगर सामने कोई गाड़ी है, हमसे आगे कोई गाड़ी चल रही है, एम्बुलेंस से कोई आगे गाड़ी चल रही है, तो वो अपने रियर व्यू मिरर में जब एम्बुलेंस की इमेज को देखती है तो जो रिवर्स ऑर्डर था वो एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाता है एंड आगे वाला ड्राइवर इजीली उसको रीड कर पाता है और उसको रास्ता देते हैं। बिकॉज कोई भी पेशेंट वहाँ क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जहाँ उसकी लाइफ जो है वो खतरे में है, इसलिए उसको रिवर्स ऑर्डर में है। एंड हियर द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन वर्क्स। नाउ क्लास 8th में हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट one more type of mirrors that are called as spherical mirrors. So we have already learned about the image characteristics of image formed by plane mirror. Now we are going to learn about spherical mirrors. Spherical mirror means the mirrors whose reflecting surface is a part of sphere. Spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface is a part of a sphere. उनको हम spherical mirrors बोल देते हैं. There are two types of spherical mirror. One is concave mirror and another is convex mirror. So two types of mirrors are there.
concave mirror and convex mirror, both of these are spherical mirror. Now how we will be able to identify this one is concave mirror or this one is convex mirror, or which is called as concave mirror, which is called as convex mirror. So to make it clear, what we can do, we can draw a circle. एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे. एक सर्कल हमने ड्रॉ किया एंड लेट इट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इस तरह से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एंड इन वन केस polish the outer surface of the sphere, and in another case जो अंदर वाली सरफेस है, इनवर्ड कर्व सरफेस है, उसको हमने पॉलिश कर लिया. तो सिंपल सा तरीका है कि हमको कैसे बताएं कि विच वन इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. एक को हमने बाहर पॉलिश किया हुआ है, एक को हमने अंदर पॉलिश किया हुआ है. इसका अगर हम सेंटर देखें इस स्फीयर का, तो हियर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसको हमने कट करके इस तरह से दो पॉलिश्ड पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो फेस कर रही है सेंटर की तरफ, ये कौन सी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द sphere. This is known as concave mirror, और जिसमें पॉलिश सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है, ये हमने क्या लिया हुआ है, पॉलिश्ड सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. और इन अनदर वे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्केव मिरर. और अगर आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि एसोसिएटेड है हमारी 10th की क्लास से. हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा, प्लेन मिरर से जो रिलेटेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाले रूल्स थे वो हमने देखे. उसके बाद इमेजेस की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने देखी. साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. फिर हमने देखा कि जो मिरर हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर बेसिकली. अगर हम लेके चलें, प्लेन मिरर हो गया और स्फेरिकल मिरर हो गया. स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो तरह के मिरर्स हो जाते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमने एक चीज़ को देखा कि अगर सिंस दीज आर द स्फीयर्स के पार्ट हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर्स के पार्ट्स होते हैं, तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. इस तरह से हम लोग इसको मान सकते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिससे हमने ये मिरर बनाया. तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्केव मिरर. और दूसरा मिरर जो हमने बनाया, उसकी जो पॉलिश सरफेस थी, दैट वाज टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ थी, उसको हमने बोला कॉन्वेक्स मिरर. यहां तक हमने अभी तक किया. कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इफ द इनवर्ड
surface is a reflecting surface, then it is called as concave mirror. If the outward surface is the reflecting surface, then it is called as convex mirror. Now कुछ चीज़ें जो मिरर के पार्ट हैं, जो मिरर के टर्म्स हैं, जहाँ हमको डिफाइन करने के लिए आते हैं क्लास 10th में, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द पहला पॉइंट जो आ जाता है दैट इज पोल. मैं उन पॉइंट्स के बारे में आपको लिख रहा हूं, जो पॉइंट्स हैं जो हम मिरर से जुड़े हुए हैं पॉइंट्स. फर्स्ट इज पोल, सेकंड इज सेंटर ऑफ curvature of mirror, then radius of curvature of mirror, then it is principal axis. Okay, so these are the 4 points which we are going to discuss related to the mirror, spherical mirror, concave mirror and convex mirror. So first of all we will discuss about pole. What is pole? जैसे कि हमने देखा कि ये जो हमारा concave mirror है, it is the part of a हॉलो स्फीयर. एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर को हमने कट किया. जब इसको कट करते हैं तो वी कैन ऑब्टेन, एक हमको मिल जाता है, अगर इसकी हम आउटवर्ड पॉलिश सरफेस को पॉलिश कर दें तो हमको एक मिल जाता है कॉनकेव मिरर. तो दिस इज द कॉनकेव मिरर. बाहर वाली सरफेस को पॉलिश किया, अंदर वाली सरफेस दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है. तो दिस इज कॉनकेव mirror. Now what is pole? So if we measure the curved surface of the concave mirror and find its midpoint, इसके मिड पॉइंट को हम पता लगाते हैं. ये हमने पूरी लेंथ को मेजर किया एंड वी फाइंड कि इसका मिड पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है. तो ये दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इज कॉल्ड एज पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर P. इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर. और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही होता है. मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज ऑन द मिरर, पार्ट ऑफ द मिरर. जो सेकेंड हमने पॉइंट लिखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेकेंड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. कोई नई चीज नहीं है, केवल डेफिनेशन में थोड़ा सा हमको समझना है. अभी हमने क्या कहा था कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर. और अगर हम इसको प्लेन में शो करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक ए सर्कल. एंड यू नो वेल दैट एवरी सर्कल हैज इट्स ओन सेंटर. तो दिस सेंटर ऑफ द स्फीयर is called as center of curvature of the concave mirror. It means, अगर इसको डिफाइन करें हम, तो center of curvature is the center of the hollow sphere of which the mirror is a part. Center of curvature उस स्फीयर का सेंटर है, हॉलो स्फीयर का सेंटर है, जिसका कॉनकेव मिरर एक पार्ट है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर
कैपिटल C से, एंड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने होता है, सामने का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर सामने है तो दैट इज सपोज टू बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसको हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल देते हैं। एंड C is not a part of mirror. It does not lie on the mirror. Next point is radius of curvature of mirror means दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वंस अगेन हमने जो लिया है ये पूरा का पूरा स्फीयर लिया है, स्फीयर में से काट कर हमने कॉनकेव मिरर बनाया है और इस स्फीयर की एक रेडियस थी। तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर और वी कैन से हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही हॉलो स्फीयर से बने हुए हैं, तो जिस भी हॉलो स्फीयर से बने हुए हैं उसकी जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कहलाती है। तो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, P और C के बीच में जो डिस्टेंस आ गई है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, और अगर नाम दे दें तो हम लिख सकते हैं यहां पर कॉनकेव मिरर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अनदर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने पोल किया था, पोल लाइज ऑन द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर यू कैन से। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of the sphere of which the mirror is a part, and the distance P and C is called as radius of the curvature, or the radius of the sphere of which the mirror is a part is called as radius of curvature of the mirror. Now these two, they are the 2 points, one is pole and another is center of curvature. If we join these 2 points with a imaginary line, हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑन द मिरर। इस तरह से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो ज्वाइन कर रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो उस लाइन को हम, स्ट्रेट लाइन है ये, उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो क्लास सम अप करने से पहले एक हल्का सा रिवीजन हमने जो पढ़ लिया था आज। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज लाइट, व्हाई द थिंग्स आर विजिबल टू अस। लाइट क्या होता है, चीज़ें हमको क्यों विजिबल होती हैं। जब विजिबल होती हैं तो हमने एक टर्म और पढ़ा था, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन that takes place from smooth surfaces and another is irregular reflection that takes place irregular surfaces और curved surfaces, rough surfaces से जो होता है। बट दोनों की दोनों surfaces से जो भी रिफ्लेक्शन होते हैं दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। देयर इज नो फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात आ जाती है तो वी हैव लर्नड अबाउट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lies on the same plane, on the reflecting
सरफेस। ये दो हमने लॉज पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखा, दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने देखा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द इमेज होता है। देन इमेज जो बन रही है प्लेन मिरर में, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, एंड इट शोज लेटरल इन्वर्जन, मीन्स अवर राइट इज द लेफ्ट ऑफ द इमेज, अवर लेफ्ट इज द राइट ऑफ द इमेज। और उसका प्रैक्टिकल यूज देखा हमने, एम्बुलेंस को क्यों रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मिरर्स, टू टाइप्स ऑफ मिरर, एक जो हमने पहले पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर, सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज देयर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने दो मिरर्स को देखा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हमने डिफाइन करने का एक देखा कि अगर हम कोई स्फेरिकल बॉल लेते हैं और उसको हम कट करते हैं टू पार्ट्स में, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑब्वियस द मिरर इज ए पार्ट, देन इट इज ए कॉनकेव मिरर। और अगर हमने देखा इट इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर है, देन इट इज कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने देखा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द मिरर। मिरर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हमने देखा पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द spherical mirror. It lies on the mirror represented by P. Then center of curvature of the mirror, the center of the sphere of which the mirror is a part is called as center of curvature of the mirror. Then radius of curvature, the radius of the sphere of which the mirror is a part is called as radius of curvature. It is represented by capital R, and radius of curvature can also be considered as the distance between P एंड C। स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, P और C को ज्वाइन करते हैं, तो जो डिस्टेंस आ जाती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, जो पोल पॉइंट जो कि स्फेरिकल मिरर की सरफेस पे प्रेजेंट है, मिड पॉइंट था, उस P और C को ज्वाइन करने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।